السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے گھر بیٹھے نادرا سے آن لائن شناختی کارڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، نہ قطار نہ انتظار، اب آپ بھی اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے خود کا شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنے پیاروں کا بھی شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایسی انفارمیشن بتانے والے ہیں جو انفارمیشن آپ کو کوئی یوٹیوبر یا پھر نادرا کا امپلائی یا عام دکاندار آپ کو نہیں بتا سکے گا، کیونکہ یہ تمام انفارمیشن ہم نے اپنے تجربات سے حاصل کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آن لائن اپلائی کے مقاصد یا سہولیات کیا ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے نہ قطار نہ انتظار۔ جی ہاں، اب آپ کو گھنٹوں لائنوں میں لگ کر نادرا میں جا کر شناختی کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے خود بھی یا ہم سے بھی اپنا آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کروا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی تصویر لگا سکتے ہیں، یعنی اپنی تصویر کو فوٹو شاپ سے ایڈٹ کریں یا پھر کسی دکاندار سے تصویر اچھی بنوا کر آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کرتے وقت لگا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد شادی شدہ والا کارڈ بنانے کے لیے بھی آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ گم ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہو چکا ہے تو 11 ماہ میں یعنی 1 سال سے پہلے آپ آن لائن اپنا خود شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے مدت زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو نادرا دفتر میں ہی جانا پڑے گا۔ کارڈ گم ہونے کی صورت میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کارڈ گم ہو جانے کے بعد اپنے قریبی تھانہ کے اندر جا کر اس کی رپورٹ لازمی لکھوائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو کوئی چوری کر لیتا ہے اور آپ کا شناختی کارڈ وہاں پر پایا جائے تو آپ اس چوری سے باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تھانے کے اندر اپنی رپورٹ لکھوائی ہوئی تھی۔ اگر آپ اپنی رپورٹ نہیں لکھوائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اپنی رپورٹ کیے بغیر بھی آپ آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اردو والا کارڈ ہے اور آپ انگلش کا سمارٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ خود آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے سائن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے آپ نے اردو میں کیے ہیں تو آپ انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ نے انگلش میں کیے ہیں لیکن آپ اس کو مزید اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، آن لائن اپلائی کر کے اپنے سائن کی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ کارڈ پر درج شدہ موجودہ ایڈریس کو آپ بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنا مستقل ایڈریس تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ انفارمیشن دینا ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ خود آن لائن شناختی کارڈ اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ایک نمبر دکھائی دے رہا ہے 0305 250 08، یہ نمبر ملائیں یا واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں احمد کی شارٹ کٹ اینڈ کمپلیٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کیجئے، اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ شناختی کارڈ کو آن لائن اپلائی کرنے کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گوگل کروم کو اوپن کر لیں۔ گوگل کروم کے اندر بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو ویب سائٹ نہیں چلتی، اگر چلتی ہے تو بار بار اوپن کرنے سے ویب سائٹ بلاک بھی ہو جاتی ہے۔ تو فائرفاکس یا جو بھی آپ بروزر کو اوپن کریں، سرچ بار میں لکھے پاک آئیڈینٹی، پھر انٹر کا بٹن پریس کر دیں۔ آپ نے لاگ ان ٹو یور پاک آئیڈینٹی اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، آپ نے یہاں پر اپنا ای میل اور یہاں پر پاسورڈ لگا کر یہ کیپچا یہاں پہ لکھنا ہے اور لاگ ان پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک نہیں بنا تو آپ نے کریٹ نیو اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا دو سیٹ اپ والا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم، یہاں پر لاسٹ نیم، یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنے موبائل کا نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر موبائل نمبر لکھ دینا ہے، یہاں پر اپنا ای میل اور پاسورڈ لگا دینا ہے۔ اگر آپ کو اسٹرانگ اور مضبوط پاسورڈ لگانا نہیں آتا تو اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگی پاسورڈ کیسے لگائیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا مضبوط پاسورڈ بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سیٹ اپ 1 کو کلیئر کر لیں گے اور نشر کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیٹ اپ 2 اوپن ہو جائے گا۔ سیٹ اپ 2 کے اندر بھی آپ نے مزید اپنے ویریفیکیشن کرنی ہے اور نشر کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ جیسے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوگا تو آپ نے دوبارہ سے ہوم پر آ جانا ہے۔ ہوم پر آنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، رجسٹر این اکاؤنٹ، جو کہ آپ نے کر لیا ہے، آپ نے لاگ ان پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے دوبارہ سے لاگ ان فارم اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے اپنا ای میل لگانا ہے اور یہاں پر پاسورڈ لگا کے یہاں پر یہ آپ نے کیپچا لکھ دینا ہے اور لاگ ان پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے۔ نیچے آئیں تو یہاں پر لکھا ڈو ناٹ ایکسپٹ اور لکھے ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو، یعنی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ لوگ آؤٹ ہو جائے گی، اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ آگے جا سکیں گے۔
एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, रिसेट ओल्ड पासवर्ड, यानी आपने जो पहले पासवर्ड लगाया है आप उस पासवर्ड को खत्म करना चाहते हैं। अगर करना है तो आप अपडेट पासवर्ड कर दें, वगरना आप इसको नोट नाउ कर दें, यानी अभी मैं पासवर्ड को रिसेट या चेंज नहीं करना चाहता। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले है न्यू एप्लीकेशन, यानी आप नई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, यानी अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी आपने जो एप्लीकेशन को पहले ओपन किया हुआ था या जो आप शनाख्ती कार्ड बना रहे थे, आपने दरमियान में आपका नेट बंद हो गया या आपको उठना पड़ गया, तो आप दोबारा जब आकर लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा है डाउनलोड। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नादरा के कुछ फॉर्म्स आ जाएंगे, यानी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, यानी फिंगर लगाने का सही तरीका क्या है, और हमने एड्रेस चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमने नाम वल्दियत वगैरह के अंदर तब्दीली करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट या उसूल ज़वाबत क्या है। आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन डाउनलोड से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहली मर्तबा नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी CNIC जो पाकिस्तान के अंदर चलता है, नाइकोप यानी जो आप बाहर जाने के लिए बनाते हैं, और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और POC ये वो कार्ड है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते थे और आप किसी बैरून मुल्क में जाकर वहां पे आपने शादी कर ली और आप वहीं पे पक्के हो गए तो आपने ये POC वाला शनाख्ती कार्ड बनवा लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये नीचे भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी है और आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसी तरह अगर आप अपनी फीस को वापस लेना चाहते हैं, रिफंड करवाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और नीचे आ जाए तो ये दो नए ऑप्शन शो हुए हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड बनवाना है। क्योंकि हमने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करने से नीचे फिर से 3 नए ऑप्शन ज़ाहिर हुए हैं। सबसे पहले है कि आप अपना पाकिस्तान के लिए आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपना पाकिस्तान में रहते हुए यानी बाहर के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं। यानी यूँ समझिए कि अगर आप पाकिस्तान और सऊदीया की या पाकिस्तान यूरोप कंट्रीज़ की डबल नेशनैलिटी रखना चाहते हैं, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा। या फिर आप पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के लिए ही हमने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से नई ऑप्शन आ चुके हैं। वो कहते हैं आपके पास पहले से 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड मौजूद है या नहीं। याद रखें, अगर आपके पास पहले से शनाख्ती कार्ड नहीं है, चाहे वो उर्दू वाला हो या इंग्लिश वाला, आप दोबारा ऑनलाइन अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकते। अगर आपके पास पहले मौजूद होगा तो ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास है तो मैं येस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फिर से नए ऑप्शन ज़ाहिर हुए हैं। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पर इश्यू डेट यानी किस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड बनाया गया है, यहाँ पर आपने अपनी तारीख पैदाइश लिख देनी है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसके ऊपर 7 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन डिटेल, फिर है पेमेंट, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड और रिव्यू। ऑटोमेटिक आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा। आपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल आपका तकरीबन 35 दिन में बन के आएगा, अर्जेंट आपका 15 दिन में बन के आएगा, एग्जेक्टिव आपका तकरीबन 7 दिनों के अंदर बन। इस तरह जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वही आपकी यहाँ पर फीस भी दिखाई देगी। आमतौर पर आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि फीस तो सिर्फ 750 रुपए जो नादरा ले रहा है दिसंबर 2023 के अंदर, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा फीस क्यों है? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो नादरा अपनी फीस के साथ साथ TCS की 300 रुपया फीस भी रख लेता है, तो इस तरह मिला के 1050 रुपए। उसके बाद आप नीचे की जानब आए तो यहाँ पर आपने ब्राउज करके अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करना है। तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर यहाँ पर शो हो जाए। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बंद और दूसरा ऑप्शन पेमेंट वाला आपके सामने जाहिर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप किस तरह ऑनलाइन अपनी फीस को अदा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करके एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी, यानी कि आपने फर्स्ट नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, ईमेल, कंट्री सेलेक्ट करनी है और स्टेट यहाँ पर सिटी लिखनी है और जिप कोड अपना लिख देना है और गली नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। अगर आपकी गली नंबर नहीं है तो आप एक फर्जी गली नंबर यहाँ पे लगा दीजिए। ये सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप जिस कार्ड के ज़रिए फ़ीस अदा कर रहे हैं, उसके मुतालिक या उसके मालिक के मुतालिक आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ये भी याद रखें, ये ज़रूरी नहीं कि जिसका कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका बैंक अकाउंट भी हो। आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट से ये फ़ीस अदा कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा,
आप इसकी अदायगी क्या मैसेज बज़रिया ईमेल पर लेना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल की सिम पर लेना चाहते हैं? अपने सिम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसका अकाउंट है उसके नंबर पर एक एसएमएस जाएगा, वो एसएमएस आपने नादरा की इस वेबसाइट पे लगाना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी फीस की अदायगी भी हो जाएगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन नीचे ओपन होगा पर्सनल डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम लिखा होगा, उसको आपने तब्दील नहीं करना। उसके बाद जेंडर यहाँ पे मेल या फीमेल, यहाँ पे आपने शादीशुदा है तो यस कर दे, वगरना आप नो कर दे। इसके अलावा आपने यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है जो आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने अपना मज़हब सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके चेहरे पर कोई दाना बना हुआ है या कोई भी आपकी निशानी है, वगरना आप यहाँ पे लिख देंगे NONE नन। उसके बाद अगर आपका पुराना कोई शनाख्ती कार्ड काफ़ी देर का बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना पुराना शनाख्ती कार्ड भी लिख देना है। आप जुड़वा बहन-भाई तो नहीं है, और है तो यस, वगरना आप नो कर दें। उसके बाद अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो यहाँ पर अपना स्टेटस यस या नो में यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले साल, उसके बाद महीना, उसके बाद आपने तारीख लिखनी है। वैसे तो खुद ही लिखा होता है, अगर खुद ना लिखा हो तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देना है। उसके बाद बर्थ कंट्री यानी आप किस मुल्क में पैदा हुए, उसका सूबा क्या है और यहाँ पे उसका ज़िला। प्रोफेशन के अंदर आपने लिखना है आप क्या करते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर आपने अपनी तालीम लिखनी है, मैट्रिक है, एफए है या प्राइमरी है या प्राइमरी से नीचे है या कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप डिसेबल हैं, यानी आपका हाथ पाँव टूटा हुआ तो नहीं है, आप सलामत हैं। अगर हाँ तो यस कर दें, अगर डिसेबल है, अगर नहीं है तो आप नो। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा और आगे वाला रिलेटिव डिटेल शो होगा। यहाँ वालिद का नाम, वालिदा का नाम और ज़ौज का नाम। वालिद का नाम लिखें फुल नेम इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे उर्दू में नाम लिखें और यहाँ पे वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर वालिदा का इंग्लिश में नाम, यहाँ पे वालिदा साहबा का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। अगर आपने शादीशुदा होने का वहाँ पे ओपन स्टेटस यस कर दिया है तो यहाँ पर आपने अपने हमसफ़र की भी इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। जैसे आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन एड्रेस वाला ओपन हो जाएगा। एड्रेस के अंदर आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, फिर आपने ज़िला और उसके बाद तहसील। उसके बाद आपने यहाँ पर ये बताना है कि आप विलेज यानी गाँव के अंदर हैं या आप शहर के अंदर रहने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर शहर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर शहर आ जाएँगे, यहाँ पर आप गाँव सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर गाँव आ जाएँगे। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हों। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं यहाँ पर देंगे, यानी गली नंबर या मकान नंबर जो भी आप आगे लिखना चाहते हैं। यानी कि मेरा मकान नंबर 10 है, गली नंबर 2 है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। अगर कुछ भी ना हो तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मौजूदा पता, अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल दोनों एड्रेस सेम है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ऊपर वाला एड्रेस होगा वही नीचे आ जाएगा। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर अपना सूबा लिखना है, अगर मुख्तलिफ एड्रेस है तो। यहाँ पर ज़िला, तहसील और यहाँ पर वही ऑप्शन है गाँव या शहरी। यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना गाँव या शहर का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन 1 या 2 कुछ भी डाल दें। उसके बाद यहाँ पर मुस्तकिल पता आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आकर आप उसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। याद रखिए मुस्तकिल की बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ सबूत यहाँ पे लफ़ करने होंगे। यानी आपके मकान की रजिस्ट्री आपको लगानी पड़ेगी, बिजली का बिल लगाना पड़ेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप मौजूदा पता यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद, तो उसके बारे में आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपना एड्रेस लिख के सेव करेंगे तो आपके सामने कार्ड डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप अपना कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो है, वो परमानेंट एड्रेस पर लेना चाहते हैं या प्रेज़ेंट यानी मौजूदा एड्रेस पर लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पर ईमेल भी लिख देंगे, ताकि आपसे बज़रिया फ़ोन या बज़रिया ईमेल आपको इत्तला दी जाए कि आपका आईडी कार्ड टीसीएस शॉप पर आ चुका है, तो आप इसे वसूल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की आ जाएगी। एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो ये देख लीजिए कि आपके मुतालिका नादरा जान लेता है कि आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट नादरा के पास मौजूद नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त भी लगाएँगे। अगर आप नादरा के दफ़्तर में चले जाते हैं, तो नादरा तब भी आपसे ये डॉक्यूमेंट माँगेगा। तो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा वो यहाँ पर लिखा होगा, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। वो कहता है सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म देना है। ये फॉर्म आपके फिंगरप्रिंट लेने के लिए होता है। अगर आपके फिंगरप्रिंट पहले ही नादरा के पास मौजूद हैं, तो आपको इस फॉर्म को लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपका यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगा, बॉक्स आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं, ओनली सिर्फ़ आपके फिंगरप्रिंट इनके पास मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने हिदायत लिखी हैं कि आपकी जो फिंगरप्रिंट वाला पेज है, इसके 10 एमबी साइज़ होना चाहिए। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम बाद में दे देते हैं और 600 डीपीआई हो, यानी जब आप स्कैनिंग करें तो उसकी रेज़ोल्यूशन जो है वो इतनी हाई हो कि 600 तक हो, यानी जब हम उसे ज़ूम करें तो अच्छे तरीके से दिखाई दे। और इसमें ये बात भी याद रखें, यहाँ पर ब्लू
रंग की स्याही कबूल नहीं है। जब आपने ब्लू लगा ली है, तो आपने उसकी स्कैनिंग करते वक़्त उसको ब्लैक कलर में तब्दील कर लेना है। ब्लैक करने के बाद आप इसको यहाँ पे अटैचमेंट करने के लिए आपने ब्राउज़ पर क्लिक करना है, अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन अपनी फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, तो आप पाक आइडेंटिटी ऐप प्ले स्टोर से ओपन करें, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट लगाकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये तमाम चीज़ें भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई है कि आपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं और ये फॉर्म है जिस पर फिंगरप्रिंट लगने हैं। जब आप ये लगा देंगे तो उसके बाद कोई आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद आपने सेव का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अटेस्टेड करदा का नाम और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आपने किसी स्कूल से करवाया है तो अटेस्टेड फॉर्म के ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। आपने वहाँ से देख कर यहाँ पे लिख देनी, यानी यहाँ पे फुल नेम इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे उर्दू में, यहाँ पे इदारा लिखना है। अगर आप नंबरदार से करवा रहे हैं तो आपने लिखना है महकमा माल, और अगर आप किसी स्कूल टीचर से करवा रहे हैं तो फिर आपने लिखना है महकमा एजुकेशन, यानी यहाँ पे महकमा तालीम, यहाँ पे आपने एजुकेशन, यहाँ पे ओहदा लिख देना है नंबरदार, एल के साथ लंबरदार लिखना है। यहाँ पर आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख के आपने सेव कर देना है। फॉर्म भी आपको वीडियो के आखिर में दिखा देते हैं। जैसे आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये रिव्यू है, यानी जो कुछ आपने फॉर्म के अंदर लिखा है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा। आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, हर चीज को अच्छे तरीके पढ़ लेना है। अगर कुछ तब्दीली हो तो आप कर सकते हैं, और सब कुछ ठीक हो तो आपने नीचे आने के बाद इन तमाम इन्फॉर्मेशन को भी सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने यस करना है। अगर आप नो करेंगे, आपके ऊपर कोई केस वगैरह है, आप क्रिमिनल हैं, तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकेगा। आपने यहाँ पर यस का बटन क्लिक करना है कि मेरे ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है, और आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका ये ट्रैकिंग आईडी है, ये आपका टाइप है, यानी आप ये दोबारा से बना रहे हैं। यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है कि आपका आईडी कार्ड है या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर ये लिखा है कि आपकी ये फाइल कब सबमिट हुई है, यानी जब कब आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर आपकी फीस लिखी है कि आपने इतनी फीस अदा की है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि आपको जारी कर दिया गया है या नहीं किया गया। यहाँ पे आपका स्टेटस है, और अगर आप पर एतराज़ लगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा से करना है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका स्टेटस लिखा होगा, जो कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये देखिए। टीसीएस के ज़रिए आपको कोरियर किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है इन प्रोसेस, यानी आपका काम अभी जारी है, ये आपकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, या ये आपने कैंसल कर दी है। और यहाँ पर वो शो होंगे जो कंप्लीट हो चुके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आपको कुछ मज़ीद मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अटैच करवाने के लिए फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म शो होगा, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट के बारे में आपसे लिखा हुआ है कि आपकी ये फिंगर लगी हुई है या ये आपने लगानी है। अगर आपने कुछ लगानी होगी तो यहाँ पे बिल्कुल खाली होगा, और अगर आपने नहीं लगानी होगी तो लिखा होगा नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसकी हमें ज़रूरत नहीं। चूँकि इस कस्टमर की मैंने फिंगरप्रिंट ऑनलाइन लगा दी थी। यहाँ पर साइन करने हैं, और यहाँ पर तस्दीक कुनिंदा अपनी मोहर लगाएगा, यहाँ पे अपना दस्तखत करेगा, यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख देगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपने एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आकर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ब्राउज़ करना है, और अपनी फाइल को, अपने फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड कर देना है। इसी तरह जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछी जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक, या आपका मैरिज सर्टिफिकेट, या आपके वालिद वालिदा का शनाख्ती कार्ड, जो भी चीज़ पूछी है आपने यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ब्राउज़ करके सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको ना तो यूट्यूब से मिलेगी, ना ही आपको नादरा का कोई एम्प्लॉयी बताएगा, ना ही आपको कोई दुकानदार या आम शख्स बता सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तस्वीर सही बनाने का तरीका क्या है। जी हाँ, ये देखिए कुछ सैंपल दिए गए हैं। आपने इस तरह की तस्वीर बनानी है जिससे के अंदर आपके थोड़े से कंधे भी नज़र आएँ और आपका चेहरा बिल्कुल सीधा और वाज़ेह हो। तस्वीर बनाने में आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो आपका चेहरा बिल्कुल सीधा हो, और दूसरा आप रोशनी के अंदर बनाएँ जहाँ पे बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह आपका चेहरा नज़र आ सके। दूसरा ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लगाने का सही तरीका क्या है? फॉर्म के अंदर जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो कैसे लगाए जाए? ये देखिए, आपने आधा नहीं लगाना, टेढ़ा नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा करके खाने के अंदर अपना अंगूठा प्रिंट करना है। ये देखें, कुछ खानों के अंदर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर देखें नाम भी लिखा है कि कौन-सी फिंगर लगानी है,
और कौन सी नहीं लगानी। जो खाने खाली हैं उनके अंदर आपने वो फिंगर लगा देनी है जो ऊपर लिखा है। जिन खानों के अंदर नॉट रिक्वायर्ड लिखा है यानी ये आपको फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब आप फॉर्म को फिल करके अपलोड करना चाहेंगे। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का सही तरीका क्या है। डॉक्यूमेंट जब आप स्कैन करने लगे तो आपने ये 3 पॉइंट का ख्याल रखना है। ब्लैक कलर में आपकी स्कैनिंग हो, जेपीजी फॉर्मेट हो और 6 से रेज़ोल्यूशन हो। चौथे नंबर पर आपने ये देखना है कि आपने जो फॉर्म स्कैन किया है उसका साइज़ 3 एमबी से ज़्यादा ना हो, वरना आपका डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा। फिंगरप्रिंट वाला जो फॉर्म है वो 10 एमबी तक काबिल कबूल है। इसके अलावा फॉर्म 3 एमबी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर दोस्तों एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपकी फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। आप पर एतराज़ भी लग सकता है। आप एतराज़ कहाँ पे और कैसे देख सकते हैं? अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को देखने के लिए आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है या रिजेक्ट कर दी गई है या फिर आपकी कंप्लीट हो गई या फिर आपने कैंसिल कर दी है। अक्सर औक़ात ये होता है कि यहाँ पर आपका स्टेटस शो हो जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। यानी आपके जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हुए या फिर जो आपने शनाख्ती कार्ड सबमिट किया है उसकी फ्रंट साइड तो सबमिट कर दी है, अब उसकी बैक साइड भी सबमिट कर दीजिए। इस तरह के कुछ एप्लीकेशन के अंदर रिजेक्शन लगा करते हैं, आप उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आकर अपनी फाइल का स्टेटस देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं शनाख्ती कार्ड की सहूलत कहाँ-कहाँ मौजूद है। फर्स्ट नंबर पर है नादरा, यानी नया शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आपको नादरा में ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इदारा आपका शनाख्ती कार्ड पहली बार नहीं बना सकता। दूसरे नंबर पर डाकखाना, डाकखाना भी आपका नया शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता, सिर्फ आपका पुराना शनाख्ती कार्ड ही रिन्यू कर सकता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के अंदर दी है, डाकखाना भी कर सकता है। आपके ज़हन में सवाल आएगा कि डाकखाने में तो पहले नहीं था, तो मैं आपको बताता चलूँ 23 दिसंबर 2023 को डाकखाना के अंदर भी शनाख्ती कार्ड की अपडेट आ चुकी है। शनाख्ती कार्ड आप नया सिर्फ नादरा में जाकर बनवाएँगे, जबकि शनाख्ती कार्ड के अंदर कुछ चेंजिंग करवानी है तो आप डाकखाना में जाकर करवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे, सोचेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है? नादरा के अंदर जितनी फ़ीस ली जाती है, डाकखाना भी आपसे उतनी ही फ़ीस वसूल करेगा, इससे ज़्यादा आपसे फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इससे नादरा में रश कम होगा, आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन सर्विसेज़, यानी आप किसी भी नेट कैफ़े पर जाकर या ऐसा शख्स जो ऑनलाइन काम करता हो या ऑनलाइन वर्किंग करता हो, आप उससे भी अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। चौथा है खुद बनाना, यानी आप खुद भी शनाख्ती कार्ड को बना सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते, तो आप घर बैठे एक कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए भी हमसे बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 0305 250 1408। अब हम बात करेंगे मोबाइल या लैपटॉप पर। जब आप अपना ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम यानी गैलरी से तस्वीर को अपलोड करना। अगर आप मोबाइल से शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी तस्वीर को गैलरी से अपलोड नहीं कर सकते। जबकि लैपटॉप से करते वक़्त या मोबाइल के अंदर किसी ब्राउज़र से यानी गूगल क्रोम के अंदर अगर आप शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी तस्वीर को गैलरी से लगा सकते हैं। दूसरा उर्दू लिखने के लिए कंप्यूटर पर उर्दू का कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर अपना नाम, वल्दियत, शहर लिखकर कॉपी करके नादरा की वेबसाइट पर जाके पेस्ट कर देना है। अगर आप मोबाइल में बना रहे हैं तो वहाँ पर मोबाइल का अपना उर्दू वाला कीबोर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह तीसरा है फिंगरप्रिंट। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो ऑटोमैटिक आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएँगे। अगर आप कंप्यूटर से बना रहे हैं तो आपके ऑटोमैटिक फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होंगे। उसके बाद साइन भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, जबकि कंप्यूटर में ये सहूलत मौजूद नहीं होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट आप चाहे मोबाइल से अप्लाई कर रहे हों या फिर कंप्यूटर पर, दोनों तरीकों पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह के शनाख्ती कार्ड हो गया, मैरिज सर्टिफ़िकेट हो गया, डेथ सर्टिफ़िकेट हो गया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल या कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। हम मुख्तसर वक्त में ये सीखेंगे कि मोबाइल पर ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है पाक आइडेंटिटी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप। इस पर क्लिक करना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। चूंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगा देना है। यहाँ पर देखें जैसे कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन आए थे वैसे ही मोबाइल के अंदर भी आ चुके हैं। यहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने वही एप्लीकेशन आ जाएगी जिसको आप कंप्यूटर के अंदर सबमिट कर रहे थे। तो जैसे आप वहाँ पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, जिस तरह के अपना नाम, वल्दियत, शहर का नाम, एड्रेस, हर चीज़ जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, तब आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है और अपने फिंगरप्रिंट भी लगा देने हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कंप्यूटर पर ऑनलाइन अप्लाई किया है। मोबाइल पर भी वैसा ही होगा और आप नया करना चाहते हैं तो ये नीचे देखिए अप्लाई नाउ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है
आपने यहाँ पर सीएनएसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नादरा आईडी कार्ड बनाना है या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है, उसको आपने चूज़ कर लेना है। जैसा कि मैंने आईडी कार्ड ही बनाना है, उसके बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो चुकी है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं या फिर आप पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। तो चूँकि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले शनाख्ती कार्ड है या नहीं? अगर है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आप शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते। ये ऑनलाइन सिर्फ़ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका पहले से शनाख्ती कार्ड बना हो। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, लिखने के बाद आपके सामने वही ऑप्शन बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा जो हमने कंप्यूटर के अंदर सब कुछ कर लिया है। प्यारे दोस्तों, हमारी बेहतरीन सर्विसेज़, घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई, घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके।